Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 83. What we were doing, we were doing the Aries, and beach mein I just took a different turn and I started on the flow of with Rahu we did in the last video. But today in continuation with Mars, we were actually जब भी हम एरिस का डिस्कशन करते हैं तब मंगल इज बिकमिंग अ प्रायोरिटी. तो मंगल से कुछ रिलेटेड चीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ because this is a very important timing. I am making this video on 30th of August 2024. And a very important flow which came to me is that on 20th August, Jupiter, जो कि देवताओं के गुरु है, it has entered into मृगशिरा नक्षत्र from रोहिणी नक्षत्र. Because नक्षत्र भी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, dear my students. नक्षत्र मैं बाद में शुरू करूंगा. अभी तो वी आर ऑन द हाउसेज एंड वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे. बट मैं क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कुछ फ्लोज आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वो आपको बता देना चाहिए. क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है आप लोगों के लिए, आपकी जिंदगी के लिए. Because why I did yesterday Rahu's video, because it's a very important thing which you can do and implement. I don't know how many people are implementing that. I think it can magically change your life. How I talked about using a consciousness of knowledge and wisdom. And same चीज को अगर हम continue करें, another magic is happening in the universe. Now, what is this magic? हमारे पास करीबन 28th of November तक का टाइम है जहां पे जुपिटर, which is the knowledge, which is the planet of expansion, wisdom, which is also somehow the planet of creativity and many other things, many other stuffs, which is it is your belief system in the universe. It is entering into मृगशिरा नक्षत्र. तो मृगशिरा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो मंगल है. अगेन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन. तो अभी क्या हो रहा है, अगर हम नक्षत्र लेवल पे जाएंगे तो देयर इज अ एक्शन and there is a wisdom, knowledge, growth, scalability. There is a solving problem. इतना आपके लाइफ में अंदर अगर कुछ ऐसी इश्यूज थी जो आप सोच रहे थे, there are certain goals which you wanted to make in life. बहुत दिन से कुछ प्रॉब्लम्स में थे आप लाइफ के अंदर, आप कुछ करना चाहते थे, you wanted to do it, and this is a time and blessing which can happen. So आप अपने चार्ट के अंदर चेक कीजिए कौन से घर में ये हो रहा है. I hope by now all the students are making daily chart, making their ascendant. So it is with respect to your राशि. मतलब जब भी हम नक्षत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ये ट्रांजिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, रिमेंबर राशि एंड लग्न. सो हम राशि से देखेंगे. चंद्रमा से अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा से देखिएगा कौन से घर में अभी ट्रांजिट हो रही है आपकी जुपिटर की. तो उस जगह पे और जहां जहां जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है. By now, I hope all of you are clear with aspects. कौन से घर में जुपिटर एस्पेक्ट करता है? जुपिटर is a outer planet. It is outside the orbit of the Earth. So it is your outer limit. आपके outer limits के planets हैं ये. So जुपिटर कौन कौन से घर में एस्पेक्ट कर रहा है? So क्या हो रहा है अभी जुपिटर के घर? हमेशा एस्ट्रोलॉजी को एनर्जी वाइज कंसिडर कीजिए. जुपिटर की एनर्जी क्या है? जुपिटर की क्रिएटिव, all the things are there. It is like, it is also a knowledge, wisdom, to do something. It is your alignment with the devatas. It is the guru जो आपके जिंदगी के अंदर से अंधेरा रिमूव करता है. So it's like guru. He's called as guru. So that guru is actually entered into a nakshatra which is a very friendly nakshatra. Whose lord is a very friendly nakshatra. और मृगशिरा क्या है? मृगशिरा है अगर डियर का ना एक सिर बेसिकली. तो आप अगर डियर को ध्यान से देखो तो डियर क्या करता है? ही वांट्स टू ऑलवेज सर्वाइव. वो देखता है हर चीज, कहाँ पे रिसोर्सेस हैं, कहाँ पे क्या चीज है, कहाँ से कोई एनिमल तो नहीं आ रहा, उसका अटैक तो नहीं कर देगा. ही इज वेरी केयरफुल. दिस इज द टाइम ऑफ 100 days as a wisdom plus carefulness are combining together. Do you understand what is happening? So this is the time. आप अगर कुछ चीजें सॉलिड फाउंडेशन अपनी जिंदगी के अंदर कुछ प्लान कर रही हो, थिंकिंग अबाउट समथिंग, थिंकिंग ऑफ सम गोल, बहुत दिन से कुछ इश्यूज है, दिस इज द टाइम दैट यू शुड थिंक इन वेरियस डायरेक्शन. साउंड आया, जैसे डियर करते हैं ना, साउंड आया, इधर देखा, स्किन हिलाता है, कोई कुछ नहीं बांटा, उस तरह की आप हरकत कर सकते हो विथ अ डिवाइन पावर, विथ द कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स. तो इट्स एन ऑस्पिशियस ओकेशन. ये जो करीबन 20th नवंबर तक आपके पास ये एनर्जी है, आप इसके अंदर कुछ सॉलिड करो. जस्ट डू समथिंग, टेक सम फाउंडेशंस. उस चीज को बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारे एंगल्स में सोचो.
and take help from the, and this is also a very important time to connect yourself with the core of spirituality कुछ चीज में अगर हायर लेवल में जा रहा है ना, आपके साथ एक्शन करने वाला, मैं बोलता हूं ना एक्शन। एरिस के बारे में आपको समझा रहा था, एरिस का क्या मतलब है? एरिस इज योर फोकस ऑफ लाइफ। जुपिटर इज एंटरिंग इनटू द नक्षत्र जिसका लॉर्ड इज मंगल, तो आपके पास वो एक्शन का पावर भी है ऑन द नक्षत्र लेवल। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र इज द स्टोर हाउस ऑफ आपकी जिंदगी की सारी कहानियां हैं उसके अंदर छुपी हुई, तो उसके ऊपर से गुजर रहे, कुछ अच्छा करने की, बहुत अच्छा तो करेगा। जुपिटर है, he's a giver planet, he's a benefic planet, मार्स इज एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट, और इनके अलग अलग पदार्थ हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, बट अभी तक आप जो सोच रहे हो ना, दिस इज अ टाइम, दिस इज अ टाइम, दिस इज अ टाइम, उसको इंप्लीमेंट करो, सीइंग एवरी पॉसिबल एंगल। ओके, हर चीज को स्क्रूटिनी करके, देख के, समझ के, आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ करके उसको इंप्लीमेंट करो। देर आर डिवाइन एनर्जी, देवता एनर्जीज आर एट द मोमेंट इन कुंडली के अंदर आपके वहां पे। डिपेंड ऑन द चार्ट टू चार्ट, कौन से चार्ट में इट मे बी पासिंग थ्रू दी, फॉर द टॉरस इट इज पासिंग थ्रू द फर्स्ट हाउस, फॉर एरिस इट इज पासिंग थ्रू द सेकंड हाउस। इस तरह से आप अपना देखो फ्रॉम चंद्रमा विच इज द हाउस। यहां पे हम चंद्रमा को लेंगे बिकॉज यहां पे आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू प्रिपेयर इज योर माइंड एंड इमोशन। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू प्रिपेयर इज योर माइंड एंड इमोशन, बिकॉज इस तरह का काम करने के लिए ना दिमाग को बहुत स्ट्रांग बनाना है कि आप अगर सपोज आपके पास फिजिकल बॉडी आपकी कैपेबल नहीं हो रही कुछ काम को, प्रिपेयर योर माइंड। आपको माइंड एंड इमोशन, फ्रॉम द माइंड, फ्रॉम योर रिएक्शंस यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग। जो लोग जो चीज करना चाहते हो, दिस इज द टाइम दे शुड रिप्लेस। कुछ लोगों के लिए अभी आप जो करोगे विथ कोट एंड कोट डिसिप्लिन, सर आपने तो बोल दिया और हमारा हुआ नहीं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट कभी कभी ना बहुत बड़ा राजयोग होता है लाइफ के अंदर, बट वो इंसान सोने में ही निकाल देता है, एंजॉय करने में ही निकाल देता है। राजा का मतलब है देयर इज अ कर्तव्य टुवर्ड्स प्रजा, उसके पास एक प्रजा होनी चाहिए, उसको नॉर्मल लोगों से ज्यादा जग के काम करना है, उसको अलर्ट रहना है, उसको मेहनत करना है, उसको 10 दिशाओं से काम करना है। सो डियर माय स्टूडेंट्स, हु थिंक्स एट द मोमेंट कि उसका बहुत दिन से कुछ चीजें जो स्टक हो रहा है, बहुत दिन से उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा, बहुत दिन से उसको कुछ चीजें चाहिए, कहीं पे कुछ चीजें ही सर्चिंग फॉर समथिंग एंड इट इज नॉट गेटिंग, दिस इज द टाइम दैट देवता एनर्जी एंड द एक्शन एनर्जीज वर्किंग टुगेदर इन योर लाइफ। प्लीज ओपन आपका जो 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 दशों दिशाओं की ऊर्जा आप अपने अंदर ओपन करो, हर चीज को मल्टी डायमेंशन से देखने की कोशिश करो, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरह से चीज को एनालाइज करो। अब मेरी लैंग्वेज जो है समझ लो, दिल से समझो इस चीज को ना, थिंक व्हाट आई एम सेइंग, लिसन फ्रॉम द हार्ट। ओके, मतलब हार्ट से सोच को मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, मे बी यू कैन क्रैक द कोड दिस टाइम। एंड अगर इसमें जो आप फाउंडेशन लगाओगे लाइफ में, सपोज यू आर थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग इवन अ बिजनेस, see in your chart where exactly you want to buy a property, you want to go for a property। मैं इससे ज्यादा क्या हिंट दूंगा आप लोगों को? If you are planning to start a business or so doing something else, this is a foundation time, you should do something। ये आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है, बिकॉज इट इज अ टाइम जहां पे ना जो हिरन की जो एनर्जीज हैं, सोच के देखो किस तरह की ऊर्जा है ये, सब कुछ देख सकता है, रेडी है, प्रिपेयर है, खाना भी चाहिए, बिकॉज यू नो दिस इज अ मल्टी कॉम्प्लेक्सिटी वर्ल्ड। कौन किसको प्रेडेटर बना रहा है इस दुनिया में आपको पता भी नहीं चलेगा, कौन किसको खा रहा है। वी आर इन अ काइंड ऑफ एनिमल किंगडम। कितने सारे न्यूज़ेस आ रहे हैं, कितने सारी चीजें आ रही हैं, आपको पता चल रहा है ना। दिस इज द टाइम यू शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल, prudent, and still try to implement things which you have been thinking of doing it for a lot of time, जिसमें आपको अभी तक लग रहा था कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा। दिस इज अ भगवान इन द चार्ट, जुपिटर इज गॉड इन योर चार्ट। तो अगर हम भगवान देखते हैं, यूनिवर्स की और बिलीफ सिस्टम देखते हैं, जुपिटर इज द गॉड इन योर चार्ट। तो गॉड प्लस मंगल की एक्शन ओरिएंटेड ऊर्जा इज देयर। उसके बाद थोड़ा सा रेट्रोगेट होंगे आफ्टर आई थिंक नवंबर का, यू आई विल टेल यू द डेट्स, and so at that time things can be little bit, but this is the time of a great importance। So that's why I was just doing Aries, and बीच बीच में मेरे को जैसे फ्लो आ रहा है, I'm trying to tell you these guys।
So I hope you will utilize this to the maximum and into मल्टीपल डायमेंशन, मतलब मल्टीपल डायमेंशनली थॉट माइंड सब कुछ सोच के डॉक्यूमेंटेशन अगर कर रहे हो, सारी चीजें सोच समझ के ध्यान दे के आगे का फॉरवर्ड थिंकिंग, रेट्रोस्पेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन करके सारी चीजें आप करो, आपको आपको बहुत ज्यादा शायद इस टाइम आप इस ऊर्जा को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.